تمام پارلیمنٹیرین یہ ووٹ سینٹ کے لیے یا ہر ایک چیز کے لیے عمران خان کی امانت ہے۔ نااہل لیگ نے پورے صوبے سے داندلی کرائی۔ وزیر اعظم عمران خان کی گورنر ہاؤس پشاور میں پارلیمانی پارٹی کے ساتھ بڑی بیٹھک۔ وزیر اعظم نے کہا پیسہ بنانے والے نشان عبرت بن چکے، گزشتہ حکومتوں نے اقتدار خدمت کے بجائے پیسہ چوری کرنے کے لیے سنبھالا، نظام میں شفافیت چاہتے ہیں، ووٹ پی ٹی آئی کی امانت ہے۔ تمام ارکان پارلیمنٹ کی وزیر اعظم کو یقین دہانی، پی ٹی آئی سینٹ کے امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے گی، مشترکہ قرارداد پاس۔ نوشہرہ الیکشن پر بریفنگ میں وزیر اعظم کو بتایا گیا نون لیگ نے سائنٹیفک طریقے سے دھاندلی کرائی، پورے صوبے سے دھاندلی ماہرین کو بلایا، نوشہرہ کے نتائج پر الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے، اپنی سیٹ واپس لیں گے۔ وزیر اعظم نے بابر اعوان سے ملاقات میں کہا کہ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کا واحد راستہ اوپن ووٹنگ ہے، سینٹ الیکشن ہائی جیک کرنے والے جمہوریت پر دھبا ہیں۔ اعلان ہوا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا انتخاب لڑ رہے ہیں، حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، چیئرمین بھی اگر وہ بنتے ہیں جس سے ان کا اعزاز نہیں ہم سب کا اعزاز ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن لڑنے سے حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے گیلانی کا چیئرمین سینٹ بننا ہم سب کا اعزاز ہوگا۔ پی ڈی ایم امیدوار یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں سینٹ میں جمہوری قوتوں کی فتح ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بظاہر مکمل طور پر غیر جانبدار ہے، اکابرین مجھ سے زیادہ میری حمایت کر رہے ہیں، جہانگیر ترین عزیز ہیں، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جہانگیر ترین کی یوسف رضا گیلانی سے رابطوں کی تردید، کہا یوسف رضا گیلانی سے رابطے یا ملاقات کی خبریں بے بنیاد ہیں، کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہوں۔ سینٹ الیکشن کے اندر پیسہ چلتا ہے، سینیٹر بننے کے لیے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ قیمت چلی گئی ہے۔ اپنے تو سینٹ کے الیکشن کا مذاق بنا دیا۔ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے صدارتی ریفرنس پر سماعت، چیف جسٹس نے ریمارک دیے سیاسی اتحاد خفیہ نہیں رکھے جائیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن بولے جس کی 6 نشستیں بنتی ہوں اسے 2 ملیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا کم نشستوں پر متناسب نمائندگی کے اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ رضا ربانی نے دلائل میں کہا سینٹ الیکشن ریاضی کا سوال نہیں، سیاسی معاملہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں معاہدہ ہوا ہے، پی ٹی آئی مردم شماری کے لیے فنڈ، ایم کیو ایم جواب میں ووٹ دے گی۔ پہلے کمرے میں سانپ چھوڑا، اب جیل میں جان سے مارنے کی کوشش۔ ڈاکٹر نے بھی حلیم عادل شیخ پر تشدد کی تصدیق کر دی، جیل کی ویڈیو بھی منظر عام پر۔ تحریک انصاف رہنما کو پہلے جیل میں جاتے اور پھر بھاگ کر واپس دروازے کی طرف آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سینے میں تکلیف کی شکایت پر حلیم عادل شیخ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر پر 50 سے 60 لوگوں نے تشدد کیا، تحریک انصاف نے کل احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جیل کسٹڈی میں حلیم عادل شیخ کے اوپر تشدد کیا گیا، میں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور اس معاملے پر میں نے سفارش کی ہے کہ فوری طور سے آئی جی سندھ کو تبدیل کیا جائے۔ سندھ پولیس کراچی میں غنڈہ گردی کر رہی ہے، گورنر عمران اسماعیل حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر بھڑک اٹھے، کہا وزیر اعظم سے آئی جی کی تبدیلی کی درخواست کر دی ہے، صوبے میں جی حضوری اور سیاسی وابستگی والا پولیس چیف نہیں چاہیے۔ آئی جی سندھ کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کریں، اگر یہ کسی کے کہنے پر مظالم ڈھا رہے ہیں تو اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک قبول نہیں، سندھ میں کرمنل نیٹ ورک نے سیاست کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، پولیس کی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کی گئیں۔ اگر کوئی شخص الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، تو کیا پولیس کو، لا انفورسمنٹ کے اداروں کو خاموش ہو جانا چاہیے؟ شبلی فراز حلیم عادل شیخ کے جرائم پر کیوں پردہ پوشی کر رہے ہیں؟
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफसाद के साथ धावा बोलने पर गिरफ्तारी हुई। कोई कानून हाथ में लेता है तो रियासत को खामोश रहना चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ और उसके कारकुन कानून से बालातर हैं? एक पाकिस्तान की बात है तो पुलिस कानून पर अमल कर रही है। खतरनाक सांप आया है और हलीम आदिल शेख ने उसको मारा। सांप खुद आया या लाया गया? मरतबा यौम पाकिस्तान भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकाद होगा और मुसल्लह अफवाज उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान का मैसेज है, एक कौम एक मंजिल, पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। 23 मार्च को भरपूर कौमी यकजहती के साथ परेड का इनेकाद होगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर बड़ा कठिन गुजरा। दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां बढ़ने लगीं। गवादर, शुमाली इलाके और केटू दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने कई संगे मील उबूर किए। कौम के भरपूर ताउन से दहशत गर्दों और सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन हुआ। दहशत गर्दों को काफी हद तक डेंट लगा दिया। मजीद काम जारी है। दुनिया ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। कराची, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पाकिस्तान के शहरियों बिलखसूस हमारे यूथ को इंतहा पसंदी पर मायल करने के अज़ाइम को नाकारा बनाया। पाकिस्तान ने होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों को बेनकाब किया। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों को बरगलाने के अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। मेहदी शाह के अहले खाना के दिए गए शवाहिद पर काम हो रहा है। सोशल मीडिया से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, भारत से मुताल्लिक डोजियर को हर फोरम पर संजीदा लिया गया। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। सरहद पर बाड़ लगाने का काम 83% मुकम्मल कर लिया गया। लोगों की हिफाजत के लिए बहुत सी चेक पोस्टें भी कायम की गईं। कौम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। कतरी वजारत खारजा के खुसूसी नुमाइंदे का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतरी नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी, बाहिमी ताउन पर बातचीत। कतरी नुमाइंदे ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। MQM के रऊफ सिद्दीकी और खिजर अस्करी जैदी भी सेनेट के लिए नाअहल करार। डॉक्टर शहाब इमाम और पलवर शाह खान के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। परवेज रशीद की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब हाउस और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। कागजात की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन और फैसल वावडा को भी नोटिस, कल तक जवाब तलब। पंजाब हुकूमत और इत्तेहादियों की सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए कोशिशें तेज। वजीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर परवेज इलाही और मुन्निस इलाही भी मुतहर्रिक। पार्टी रहनुमाओं को अरकान से राब्तों का टास्क देने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान से राब्ते कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, सेनेट इलेक्शन पर इत्तेहादी एक पेज पर हैं। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऑन कर दी। अब लेट से मैं जो है वो बैट के ऊपर, ये निकलेगा नहीं, ये रोल है सर, ये तो बैलेट बॉक्स है, रोल। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात दम तोड़ जाएंगे। वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है, मशीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले हिस्से पर इंतखाबी निशानात होंगे, दूसरा हिस्सा प्रिजाइडिंग अफसर के पास होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही मशीन ऑन कर सकेगा। मशीन के जरिए वोटर किसी भी निशान पर क्लिक करके वोट डाल सकेगा। मशीन को नादरा, नस्ट और कॉन्सेप्ट के साथ शेयर किया जा रहा है।
NA-75 डस्का में कौन जीता कौन हारा, इंतखाबात में टेम्परिंग हुई या नहीं, इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल, फैसला आइंदा 2 रोज में होने का इम्कान। TK 63 नौशहरा में भी वोट गायब होने का इंकशाफ। PTI उम्मीदवार ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिया, कहा 40% पोलिंग स्टेशन पर बद इंतजामी और बेकायदगियां सामने आई। मेजर साहब टच से ले जैसे बदबख्ती पूरे राय के बारे। कराची में फौज का जाली मेजर बनकर अगवा बराए तावान करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। टीम सरेआम की एक और बड़ी काविश कामयाब। 1 करोड़ का उधार वापस दिलाने के लिए जाली मेजर ने शहरी को अगवा किया। जाली मेजर की टीम ने अगवा किए गए शहरी पर बदतरीन तशद्दुद किया। टीम सरेआम ने शहरी के अगवा तशद्दुद की वीडियो खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड की। जाली मेजर और उसके साथियों से असलहा, यूनिफॉर्म और जाली कार्ड बरामद। मुलजिम अगवा, डकैती, गैर कानूनी असलहे और पुलिस मुकाबले समेत कई केसेस में मसलूल था। टीम सरेआम ने जाली मेजर और मुसल्लह साथियों के खतरनाक गैंग को गिरफ्तार करवाया। Oh, he was looking for the Yorker. बहुत ही जोरदार शॉट, फ्लैट। और ये चेंज ऑब्वियसली। PSL 6 का एक और सनसनीखेज मुकाबला। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत के लिए लाहौर कलंदर्स को 179 रन का हदफ दे दिया। क्रिस गेल ने 68 और कप्तान सरफराज अहमद ने 40 रन की इनिंग्स खेली। नवाज के 33 रन। ग्राउंड को इस्तेमाल करेंगे। हम बातें अभी कर रहे हैं 2 फ्रेंचाइजीज के साथ फ्रेंडली मैच आके खेले हैं इधर पर PSL के बाद। गवादर के शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर। दुनिया के सबसे खूबसूरत गवादर स्टेडियम में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान नुमाइशी मैच होगा। मैच PSL 6 के फाइनल के बाद करवाया जाएगा। हतमी तारीख का ऐलान जल्द होगा। हर लम्हा पुरजोश बना दो। जोश दीवानों का, PSL के परवानों का हर लम्हा पुरजोश। सबसे बड़े शो में आज मॉडल अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी बनेंगे मेहमान और करेंगे वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। प्रोग्राम में शामिल होंगे राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के माहिराना तजज़िये और तबसरे। शफात लाएंगे कहकहों का तूफान। FATF का वर्चुअल इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने का फैसला होगा। पाकिस्तान ने तामीली रिपोर्ट पेरिस को जमा करवा दी। जनवरी में भी करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी। स्टेट बैंक का कहना है दिसंबर में करंट अकाउंट खसारा $652 मिलियन था। जनवरी में सिर्फ $229 मिलियन रहा। रवा माली साल के 7 माह में करंट अकाउंट सरप्लस $912 मिलियन हो गया। गुज़िश्ता माली साल के 7 माह में करंट अकाउंट खसारे का बोझ $2 अरब 54 करोड़ था। बरामदात मुस्तहकम है। तरसीलात में रिकॉर्ड इजाफे का रुझान जारी है। मकामी जरूरत पूरी करने के लिए गंदम, चीनी, खुर्दनी तेल की दरामदात में इजाफा हुआ। माशी बहाली की वजह से मशीनरी दरामदात बढ़ गई। सूबा भर में तलबा को न सिर्फ स्कॉलरशिप फराम किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब के हर जिला में यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए पुरअज़्म भी है और इस पर अमल पैरा भी। पंजाब भर में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। 1 अरब रुपए से मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं स्कॉलरशिप में हर साल इजाफा किया जाएगा। तमाम जो रजिस्टर्ड वैक्सीन हैं वो सीरियस बीमारी से जो उनकी प्रोटेक्शन का लेवल है वो 90s में है, तो इसलिए प्लीज इसको लगवाएं, इसमें हिचकिचाहट ना करें। कोरोना वैक्सीन 90% तक मौसर और महफूज है। मामूली खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन लगवाने के अहल शहरी रजिस्ट्रेशन कराएं। कोरोना से एहतियात अब भी लाजिम है।
पाकिस्तान में कोरोना मजीद 16 अफराद की जान ले गया। मजीद 1160 केसेज रिपोर्ट हुए। लियाकताबाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम पर हमला। इलाका मकीनों का एहतजाज। खवातीन भी घरों से बाहर निकल आई। मुश्तइल अफराद के हमले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। एहलकार के कपड़े भी फाड़ दिए। कराची औरंगी टाउन में घर की टैंकी में गैस भरने का से धमाका। 4 बच्चों और खातून समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। 2 मकान और एक दुकान जमीबोज। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है शॉर्ट सर्किट टैंकी में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ। शिमाली वजीरिस्तान में नामालूम अफराद की एनजीओ की गाड़ी पर फायरिंग। 4 खवातीन जाम बहक, ड्राइवर जख्मी। पेशावर में घरेलू तनाज़े पर मुलजिम की फायरिंग। 3 खवातीन समेत 5 अफराद फंसे। थरपालकर में देहातियों ने चीता मार डाला। इस्लाम कोट के गांव में चीते ने हमला करके 8 अफराद को जख्मी कर दिया था। गांव वालों ने चीते को फायरिंग करके मार दिया। कहा महकमा जंगी हयात को इत्तला दी मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। खबर देने वाला खुद खबर बन गया। एक्वाडोर में बराह रास्त नशरियात के दौरान रिपोर्टर लुट गया। मास्क पहने मुसल्लह डाकू ने रिपोर्टर और कैमरामैन के फोन छीने और फरार हो गया। कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे हैं और बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं। शायर इनकलाब जोश मली आबादी की 39वीं बरसी। जोश की शायरी और अदबी खिदमात उर्दू जबान का हुस्न कहलाई। उनकी किताब यादों की बारात ने शोहरत पाई। 9 बरस की उम्र में पहला शेर लिखा। Now we're searching for a perfect place to call home. It's the end of the world. कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एनिमेटेड फिल्म का एजाज द क्रूज के सीक्वल के नाम। शरारतों से भरपूर फिल्म द क्रूज न्यू एज $58 मिलियन का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर छा गई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,390 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,549 रुपए 97 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 55 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फीसद का है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।